Good morning, class 8. Today we have to study direct and indirect proportions. This is a chapter number 11. In this chapter, we have to study quantities which is dependent to each other. The lesson name is direct and indirect proportion. So firstly is what is proportion? If two or more ratio are equal, then it is in a proportions. It means that if two or more ratios are equal, then it is in a proportion. Like that, if 2 upon 4 and 3 upon 6, these are two ratio. In ratio form, it is right that 2 ratio 4, 3 ratio 6. If it's divided, then we get 1 upon 2. 3 1 is 3, 3 2 is 6, means 1 upon 2. 1 ratio 2, 1 ratio 3. This means that 2 ratio 4 and 3 ratio 6 are in equal proportion. So you have got what is proportion. Proportion means if two or more ratios are equal, then it is called as a proportion. Now in this chapter we have to study a direct and indirect proportion. So first is a direct proportion. What is a direct proportion? If two quantities are said to be direct proportion, if it is increase or decrease, the second quantity is also increase or decrease. It means that if two quantities are given and one quantities are increased, then second quantity is also increased. Similarly, if one quantity is decreased, then the second quantity is also decreased. Example, let the price of one pen is 5 rupees. Okay, if we purchase 2 pens, then you have to give a 10 rupees. You have given a 10 rupees. You have to purchase a 3 pen. You have given a price 15 rupees. So one quantity is increased, then the second quantity is also get increased. You have to increase the pen, then the price is also increased. So this is called as a direct proportion. Another example, in car or scooter move 1 kilometer by 1 liter, let 1 liter in 10 kilometer. If a car is move 1 liter in 10 किलोमीटर, 1 लीटर अगर हम पेट्रोल डलाते हैं कार में, इट्स मूव 10 किलोमीटर. अगर हमने अपनी कार में 2 लीटर पेट्रोल को फिलअप किया है, यू हैव टू फिलअप 2 लीटर पेट्रोल, देन इट्स मूव 20 kilometer. It means that you have to increase a liter of filling the liter in the car, then it goes to a longer distance. So this is a direct proportion. All kinds of proportion is called as a direct proportion. Second is a indirect proportion. What is indirect proportion? Indirect proportion क्या होता है? Indirect proportion में if one quantity is increased, the second quantity is decreased. अगर हम एक quantity को increase करते हैं, तो second quantity क्या होगी, वो हमारी decrease करती जाएगी. Let's example, जैसे मान लीजिए you have a food for 10 people. आपके पास खाना है, 10 लोगों के लिए खाना है. You have a food for 10 people for 5 days. मीन्स आपके पास खाना है, 10 लोग के लिए आपके पास खाना है, और कितने दिन के लिए खाना है, for 5 days. मीन्स 10 people eat food for 5
डेज, 10 लोग जो हैं वो 5 दिन में खाना खा सकते हैं, खाना खा लेंगे। इफ़ वी इंक्रीज द पीपल, अगर हम लोग मान लीजिए पीपल बढ़ा देते हैं, लोग बढ़ जाते हैं, तो क्या 5 दिन खाना चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। खाना क्या होगा? जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए अगर हमने 20 पीपल, यहाँ पे 20 पीपल अगर हमारे पास आ गए टू ईट फूड, देन इट्स ओनली गोज टू द 2.5 डेज या 2.5 दिन ही खाना हमारा चल पाएगा। इट्स मीन अगर एक क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज करे तो सेकंड क्वांटिटीज क्या होगी? डिक्रीज करिए। दिस इज अ इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का एक और एग्जांपल है, लाइक यू हैव अ वर्क फॉर डू। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, मीन्स आपको कोई घर में काम दिया गया है, मान लीजिए आपको टू कंप्लीट अ वर्क, यू हैव गिवन अ वर्क, तो आप उस काम को मान लीजिए 1 वर्क दिया गया है और उस काम को आप 5 डेज में कर लेते हैं। यू हैव टू कंप्लीट इट 5 डेज। अगर 1 वर्क या 1 पर्सन है, 1 पर्सन इट कंप्लीटेड अ वर्क इन 5 डेज। 1 पर्सन, दिस इज अ 1 पर्सन, एक लोग है तो इस कंप्लीटेड अ 5 डेज। लेकिन मान लीजिए अगर हमने लोग बढ़ा दिए, आदमी बढ़ा दिए, अगर मान लीजिए 2 पर्सन हो गए या 3 पर्सन हो गए, तो जो काम करने का टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हो सकता है 3 डेज हो जाए। इट्स मीन्स डेट अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज अ मैन, इट्स वर्क इज कम्प्लीटेड एज अर्ली, मीन्स काम जो होगा वो क्या होगा? जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। Now come to exercise 11.1 in your book. It is a given exercise 11.1 in your book. Okay, you have opened it. Okay, question number first is given. Find a value of A, B and C given that x, y are in direct proportion. यहाँ पे हमें x, y की वैल्यू फाइंड करना है। x, y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, A, B, C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट क्वेश्चन नंबर 1, A पार्ट, x and y are given. It's make a table. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है। फर्स्ट टेबल की क्वांटिटी है 5/3, नेक्स्ट है 15/9, नेक्स्ट इज 17.5, 10.5, next is A 16.5 and 20B. So it's given. You have to finding the value of A, B and C in a given table. Okay. Now firstly you have to find the value of A. It's given as x and y are the direct proportion. मीन्स यहाँ पे जो दिया गया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट मीन्स डेट आर इन इक्वल रेशियो। ये क्या होंगे? सब हमारे इक्वल रेशियो। मीन्स 5/3 इज इक्वल टू 15/9 इज इक्वल टू 17.5 अपॉन 10.5 इज इक्वल टू A अपॉन 16.5 इज इक्वल टू 20 अपॉन। मीन्स यहाँ पे क्या है? सारे जो रेशियो दिए गए हैं वो इक्वल है, तो हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। लेट वी हैव टू टेक first part 5/3. You have taken a 5/3 and you have taken up A is A upon 16.5. 16.5. You have to find in a value of A by using the cross multiplication. So how to solve it? 5 multiplied by 16.5 is equal to 3 multiplied by A. Now मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे 3 क्या है? राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इट कम इनटू द डिवाइड फॉर्म। सो 5 multiplied by 16.5 divided by 3 is equal to A. Now divide कर देंगे, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 16 एक बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 के पास, तो क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। फिर 3 5s are 15, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 इज इक्वल टू A। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे साइड में रफ बना सकते हैं, तो यह हो जाएगा 5 5 25, 2 5 5 25, 26 एंड 27। दिस इज द वैल्यू ऑफ A। यू हैव गेट अ वैल्यू ऑफ A। इस तरह हम A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ B। हाउ टू सॉल्व? देन टेक 5/3
दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। 5/3 इज इक्वल टू 20/b। इसको यहाँ पे भी क्या करेंगे, यू हैव टू डन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20। 3 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको 5 क्या है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 20/5 डिवाइड कर देंगे। 5 1 5, 5 4 20, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5 by 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। द वैल्यू ऑफ बी इज गेट 12। इस तरह हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस बी जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा होमवर्क। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्या है फर्स्ट का बी जो पार्ट है, दिस इज अ होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Question number 2 is a bus travel 15 किलोमीटर in 30 minutes। एक बस है जो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 30 मिनट्स का टाइम कंज्यूम करती है। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, आपकी स्पीड क्या है सेम है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 6 आवर्स। अगर वो 6 आवर्स हमारी बस मूव करे तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगी। जैसे मान लीजिए एक बार कार है, अगर आप 5 मिनट चलते हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगा, आप ज़्यादा देर तक चलेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। मीन जितने ज़्यादा टाइम तक आप चलेंगे यू हैव टू कवर अ मोर डिस्टेंस। सो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मीन्स अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपको कोई राउंड लगाना है, जैसे मान लीजिए 10 मिनट आपने टहला तो मान लीजिए 1 किलोमीटर चलेंगे। अगर 20 मिनट टहलेंगे तो आप 20 किलोमीटर चल सकते हैं। अगर 10 मिनट आपने टहला तो 1 किलोमीटर चल सकते हैं। अगर 20 मिनट्स आप चल रहे हैं तो 2 किलोमीटर चल सकते हैं। तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरी क्वान्टिटी भी क्या हो रही बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पे अगर टाइम इंक्रीज कर रहे हैं then its distance cover is also increase। so make a table। इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव मेक अ टेबल। हमने यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पे क्या दिया गया, क्वांटिटीज क्या क्या है, टाइम्स दिया गया है और हमारा क्या है डिस्टेंस। टाइम हमारा मिनट्स में दिया गया है और डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में है। मेक अ टेबल। पहले हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं। टेबल स्टेप बना लेंगे। इट इज़ अ सिमिलर वे टू सॉल्व इन द क्वेश्चन। 2 दिया गया है, पहले जो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 15 किलोमीटर दिया गया है और टाइम कितना लग रहा है इसको 30 मिनट्स लग रहे हैं। 30 मिनट्स लग रहे हैं। नेक्स्ट में दिया गया हाउ फॉर वे ट्रेवल इन 6 आवर्स। 6 आवर्स अगर ट्रैवल करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखिए 6 आवर्स, आवर्स क्या है टाइम, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6 आवर्स लिख लेंगे। 6 आवर यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करें मान लेते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। लेट इट टेक इट कवर अ x किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ पे लिख लेंगे लेट बस ट्रैवल x किलोमीटर इन 6 आवर्स। ओके, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स जो रेशियो होती है वो क्या होती है हमारे इक्वल्स होती हैं। मीन्स 15 किलोमीटर अपॉन 30 मिनट्स इज इक्वल टू x किलोमीटर अपॉन 6 आवर्स। यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस दिया किलोमीटर में सेम है, लेकिन जो टाइम दिया गया है इट्स नॉट इन द सेम क्वांटिटी। एक मिनट में, एक हमारे क्या है आवर्स में है। तो इसको हम लोग एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ और इन आवर्स कन्वर्टेड इनटू द मिनट्स वी हैव टू नो दैट 1 आवर्स हैव 60 मिनट्स। 1 आवर्स हैव 60 मिनट्स। So putting the value 15 upon 30 is equal to x upon 6 into hours और कितना है 60 मिनट दिया, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट। ओके, ये भी क्या है हमारा मिनट में दिया गया है। नाउ वी हैव टू गेट अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 6 into 60 is equal to 30 मल्टीप्लाई बाई x। 30 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड कर देंगे।
15 multiplied by 6 multiplied by 60 upon 30 is equal to x। सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, क्या क्या बचा हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 6 ज़ा 30 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, यू हैव टू गेट एक्स। एक्स क्या है हमारा? दिस इज अ डिस्टेंस, सो एक्स इज इक्वल टू 180 kilometer. It means that if a bus moves 6 hours, it cover a 180 kilometer. So write down, if bus travel 6 hours, it cover a distance, it covers a distance 180 किलोमीटर। इट कवर डिस्टेंस 180 किलोमीटर। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो? 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। नाउ राइट डाउन होमवर्क, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 and 7. You have to complete it in copy and click a photo and upload on the group. Thank you.